Hello friends, yesterday we have seen or in previous lecture we have seen simple air cooling system. Today we will see bootstrap air cooling system. The only difference in between simple air cooling system and bootstrap air cooling system is that there are two heat exchanger in bootstrap air cooling system and only one in simple air cooling. Okay, so all the workings are same. Ambient air comes inside the aircraft. Ramming takes place here. Means temperature and pressure of this ambient air is somewhat increased. Now this ram air goes to the main compressor, but some part of the ram air is extracted here for cooling purpose. So when this remaining ram air goes to main compressor, where it is compressed. After compression, it goes to the combustion chamber for combustion purpose. But some of the compressed air is extracted here. Remaining goes in combustion chamber where combustion with fuel takes place and expanded on gas turbine and power is generated. So it is this power is used to run the aircraft. Okay. So our part is here only. So extracted air goes to the this extracted compressed air goes to the first heat exchanger where it is cooled by this ram air because temperature of this ram air is very lower than this compressed air. So heat of this compressed air is taken by ram air and ram air will go outside. So this cooled compressed air again goes to the secondary compressor. Okay, and after again compressing after compressing this air, again that air goes to second heat exchanger, and in this second heat exchanger also cooling is achieved with the help of this ram air. Means cooling of this compressed air is taken by this ram air. मतलब ये ram air इसकी heat ले लेगा. Now this further cool compressed air goes to the cooling turbine where it expands, so its pressure and temperature decreases. Now this more cool air goes to the cabin for cooling purpose or refrigerating purpose. Okay, so we have used secondary compressor here. Now only energy we are giving is to the main compressor only, because secondary compressor is run on the power which is generated because of this cooling turbine. यहाँ पर जो compressed air expand होगी cooling turbine पे, यहाँ पर जो power produce होगी वो power consume करके या use करके ये secondary compressor वर्क करेगा. इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क देने की जरूरत नहीं है. This secondary compressor is run by cooling turbine. हमें सिर्फ वर्क देना पड़ेगा इस मेन कंप्रेसर को. क्लियर, समझ में आ गया. एम्बिएंट एयर रैमिंग होके अंदर आएगी. रैम एयर का कुछ पार्ट हम निकाल लेंगे, बाकी का पार्ट मेन कंप्रेसर पे जाएगा, वहां पर वो कंप्रेस्ड होगा. कंप्रेस होने के बाद कुछ पार्ट हम उसको कूलिंग पर्पस के लिए निकाल लेंगे, बाकी का पावर जनरेशन के लिए आगे जाएगा. अभी जो कंप्रेस्ड एयर है वो पहले हीट एक्सचेंजर में जाएगी, वहां पे वो अपनी हीट रैम एयर को देगी. रैम एयर गर्म हॉट होकर बाहर चला जाएगी. ये जो अब ये कूल कंप्रेस्ड एयर फिर सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगी. सेकेंडरी कंप्रेसर में जाने के बाद वो कंप्रेस होकर कूल एयर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जाएगा, जहां पर वो अपनी हीट रैम एयर को दे देगा और फिर कूल होके टरबाइन पे एक्सपांड होगा, जहां पर उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी कम होगा. अब वो एयर हम कूलिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे एरोप्लेन के, और जो कूलिंग टरबाइन में जो पावर जनरेट हो गई वो हम इस सेकेंडरी कंप्रेसर को रन करने के लिए चलाएंगे. सो ओनली पावर रिक्वायर्ड इन मेन कंप्रेसर. ये सेकेंडरी कंप्रेसर कूलिंग टरबाइन के ऊपर चल रहा है. अब हम टीएस डायग्राम देखेंगे. तो देखो दिस 1 to 2 shows ramming action. 1 to 2 ramming. This if ramming is not isentropic, then actual ramming is 1 to 2 dash. After 2 dash, ram air goes to the main compressor. So 2 dash से 3 क्या है? Isentropic compression in main compressor. लेकिन अगर isentropic नहीं रहा तो 2 dash से 3 dash actual compression in main compressor. Now this 3 dash to 4 takes place in first heat exchanger. जो compressed air cool होती है फर्स्ट एक्सचेंजर में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है 3 dash से 4 dash. अब 4 dash में क्या, ये सॉरी 4, अब 4 में क्या होगा, जो compressed air है, जो compressed air ये जो कूल हो गई है वो सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगी.
तो ये 4 to 5 क्या है दिखाता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन सेकेंडरी कंप्रेशन, ओके, या 4 डैश से सॉरी 4 से 5 डैश एक्चुअल कंप्रेशन इन सेकेंडरी कंप्रेशन कंप्रेसर, ओके। 5 डैश से 6 कूलिंग प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड हीट एक्सचेंजर, या जो भी कंप्रेस्ड एयर हुई है जो सेकेंड हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जो रैम एयर उसकी हीट निकाल लेगी, वो कूलिंग जो सेकेंड हीट एक्सचेंजर में होगी वो 5 डैश से 6। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट 6 जो सेकेंडरी कंप्रेशन के बाद में एयर जो कूल हुई है वो कूलिंग टरबाइन के ऊपर एक्सपांड होगी 6 to 7। इफ एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक देन 6 to 7, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं है देन इट वुड बी 6 to 7 डैश, ओके। अब ये 7 डैश पे हमारी एयर तैयार है, 7 डैश से जाएगी वो केबिन में, अपना लोड ले लेगी, मतलब कूलिंग प्रोड्यूस करेगी 8 तक, और 8 के बाद वो मतलब 7 से 8 अपना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहेगा, ओके। सो कितना मास हम यहाँ पर मास का ले रहे हैं उसके लिए m 210Q into Cp into T8 minus T8, 8 और 7 क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, मतलब कितनी हीट रिमूव हुई है MACP into T8 minus T7 डैश, अगर ये m गया है तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, मतलब Q निकल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जब हम किलोजूल पर केजी में लेंगे तो सिर्फ ये आएगा, लेकिन किलोजूल पर सेकंड में रहेंगे तो मास फ्लो से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये ब्रैकेट जब इधर जाएगा तो हमें वो Q देगा, बराबर, समझ में आ गया। अभी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन निकला है 210, या 210 से मल्टीप्लाई किया इसीलिए m किलोजूल पर मिनट मिलेगा, क्लियर। मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना रहेगा यहाँ पर m a इंटू Cp इंटू T8 माइनस T7 डैश, ये सिर्फ मास फ्लो ये इधर लेके जाओ Q बनेगा, लेकिन हमें मास निकालने इसलिए ऐसा फॉर्मूला है, ओके। तो पावर रिक्वायर्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अब यहाँ पर 2 बार कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 4 से 5, लेकिन 4 से 5 कंप्रेसर जो सेकेंडरी कंप्रेसर है वो ये एक्सपांशन में जो कूलिंग टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करेगा वही यूज कर रहा है, मतलब इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे, जो भी एक्सपांशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यूज करके ये कंप्रेसर रन हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ एनर्जी का पर देनी है मेन कंप्रेसर में जो 2 से 3 डैश में होगा, बराबर। तो उसके लिए कितना लगेगा MCP T3 डैश माइनस T2 डैश, ये एक्चुअल अगर लिया तो T3 माइनस T2, ओके, डिवाइड बाय 60 किलोवाट के लिए, समझ में आ गया। अगर आपको सीओपी निकालना है, सीओपी क्या रहता है Q अपॉन पावर, Q अपॉन पावर, ये 210 किलो जूल पर केजी के लिए और 60 वो भी किलो जूल पर केजी के, ओके, या Q बाय P भी अपने याद रखा, तो इट इज दी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट। Q क्या आएगा अपना Q, जो यहाँ पर लिखा नहीं मैं आपको बताता हूँ, Q सिर्फ Q क्या रहेगा, ये MA इंटू CP इंटू T8 माइनस T7 डैश, और P क्या रहेगा MA इंटू CP T3 डैश माइनस T2 डैश। यहाँ पर आप याद रखो, ये फॉर्मूला मदद करने से अच्छा है आप याद रखो कैसे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या रहेगा MA इंटू CP T8 माइनस T7 डैश, और पावर MA इंटू CP T3 डैश माइनस T2 डैश, ये बात याद रखो, आप सीओपी इसका निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड। ये हो गया बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही फर्क है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इवेपोरेटर लगता है, बाकी का पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है। देखो एम्बिएंट एयर, रैम एयर अंदर आ गई, कंप्रेस्ड हो गई मेन कंप्रेसर में, कुछ पार्ट हमने निकाल लिया कूलिंग के लिए, पहले इवेपोरेट हीट एक्सचेंजर में गई, जो रैम एयर हमने एक्सट्रैक्ट किए पहले से ही वो उसको कूल करेगी। अब ये कूल कंप्रेस्ड एयर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जहाँ पर वो कंप्रेस्ड होके सेकेंड हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जहाँ पर अगेन रैम एयर उसको कूल करेगा। अब इसे और कूल करने के लिए इवेपोरेटर है, ओके। सो व्हाट हैपन हियर व्हेन दिस कंप्रेस्ड एयर गोस टू इवेपोरेटर, इन इवेपोरेटर फॉर कूलिंग refrigerant is used generally. So which type of refrigerant is used? Either water or alcohol or अमोनिया, जितना हमें रेफ्रिजरेंट इफेक्ट चाहिए उस हिसाब से हम रेफ्रिजरेंट यूज करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लिक्विड वाटर सॉरी हम वाटर को इसके ऊपर से भेजेंगे, वाटर इसकी हीट ले लेके इवेपोरेट हो जाएगा, बराबर। या फिर हम अमोनिया को भेजेंगे, अमोनिया इसकी हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा, या अल्कोहल को भेजेंगे, जितना कूलिंग हमें चाहिए। अब आपको मालूम है हाई अल्टीट्यूड पे सपोज आप अगर हम 20,000 फीट के ऊपर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 40 है, 40 रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री पे वो इवेपोरेट होगा। अगर अल्कोहल यूज करते हैं तो वो 9 डिग्री पे
इवापोरेट होगा। अगर अमोनिया यूज करते तो उसका माइनस में, -20 या 70 कुछ तो भी माइनस में वो अपने को कूलिंग दे सकता है। तो जितनी कूलिंग हमें चाहिए उसी से हम रेफ्रिजरेटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, इस कंप्रेस्ड एयर को कूल करके इवापोरेट हो जाता है। ओके, अभी जो कूल हुई कंप्रेस्ड एयर है, अभी टरबाइन की कूलिंग टरबाइन में एक्सपांड होगी, जहाँ पर उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी कम हो जाए, मतलब फर्दर कूल होगी और टरबाइन रन होगा, पावर प्रोड्यूस होंगी, जिससे सेकेंडरी कंप्रेसर चलता है। और जो अब कूल हुई लो प्रेशर एयर है उसको हम कूलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इवापोरेटर यूज कर रहे हैं। इवापोरेटर क्यों यूज कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट यूज करके हम उसको और कूल कर सके। तो रेफ्रिजरेंट जनरली वाटर है या अमोनिया हम यूज करते हैं, इवापोरेटर कूलिंग होती है इसलिए इवापोरेटर। ओके, मतलब लिक्विड वाटर आएगा, इसकी हीट लेके वेपर बनेगा और चला जाएगा, या लिक्विड अमोनिया आएगा, इसकी वेपर लेगा, इसकी हीट लेगा, वेपर बन के चला जाएगा। ओके, अब इसको हम टीएस डायग्राम पे देखेंगे हम। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक रैमिंग, 1 to 2 डैश एक्चुअल रैमिंग, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मेन कंप्रेसर में जो होता है। अगर मेन कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक नहीं है तो अगर तो 2 डैश टू 3 डैश। ओके, 3 डैश टू 4 ये कूलिंग कहाँ पर होगी, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, बराबर। फर्स्ट फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद 4 डैश टू 5 सेकेंडरी कंप्रेसर या 4 डैश टू 5 डैश सेकेंडरी कंप्रेसर। ये 5 डैश से 5 डबल डैश सेकेंड हीट एक्सचेंजर में, मतलब यहाँ पर जो कूलिंग होती है, यहाँ पर एयर कूल होती है, वो क्या कौन से पॉइंट से दर्शाएंगे, इंडिकेट किया है 5 डैश से 5 डबल डैश। और 5 डबल डैश से 6 कहाँ पर आएगा, ये इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर के लिए। देखो 3 से 4 पहले हीट एक्सचेंजर में, 5 डैश से 5 डबल डैश दूसरे हीट एक्सचेंजर में, 5 डबल डैश से 6 इवेपोरेटर में। समझ में आ गया? ठीक, अब ये कूल एयर कूलिंग टरबाइन पे जाएगी, जहां पर वो एक्सपांड होगी। अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो आइडियल एक्सपेंशन तो 6 to 7, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं है तो 6 to 7 डैश, और 7 से 8 क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यहाँ पर अपना लोड ले लेंगे। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। आप ये समझ जाने के बाद आराम से निकाल सकते हैं। और ये उसके जो मास ऑफ फ्लूइड कैसे निकालेंगे, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 2 8 माइनस की 7 डैश पावर। और CO क्या रहता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। और अगर Q हम किलो जूल पर केजी में ले रहे तो वर्क डन आता है, Q हम किलो जूल पर सेकंड में आएगा तो पावर लेंगे। मतलब Q अपॉन P इज नथिंग बट CO2 ऑफ रेफ्रिजरेंट। Q कैसे निकालेंगे, MACP T8 माइनस T7 डैश। और पावर हमें सिर्फ यही लगेंगे, ये तो टरबाइन पे वर्क होगा, टरबाइन की पावर ले लेगा। तो यहाँ पर कितना वर्क पावर लगेगा, MA इंटू CP T3 डैश माइनस T2 डैश। समझ में आ गया? कल हम देखेंगे आगे का रीजनरेटिव और रिड्यूस टाइम। आज के लिए इतना, अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।